Hello, Yes, sir. Yes, sir. am I audible? So, in this lecture, we will discuss about the आपकी lab है फिलहाल. Hello. We will discuss about the microprocessor and microcontroller lab in this section, basically. Yes. So, before going to start, we will just talk about the experiment list. Clear? So, whatever provided by the AKPU, we will discuss that. Yes. So, I am just sharing just see this. तो आगे लाइट वाला 1.5 mm वाला ले आ. So, I am just sharing a document. All of you kindly see. Okay. So, my voice is clear to all of you. Is there any issue regarding voice? So you can say. Otherwise, I am moving forward. Is there any The issue regarding my background voice? voice is Okay. Is there any glitch in the voice? आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जरा इसको देखिएगा. I think everyone is connected now. So I am just sharing a document regarding your lab. ये सभी को दिख रहा है? Hello? I have yes, sir. shared you the experiment list here. So इसमें देखिए आप लोग जो डिटेल है. These are the suggested list of experiments which is covered in your syllabus regarding microprocessor and microcontroller labs. The subject code is KEC 552, in which few of the experiments will be on virtual lab, clear, through the virtual lab link, while others will be shared either by the videos of that particular experiment or something else we will share you. If we got the virtual lab link of those which for which we are not available for that. तो अगर हमें कुछ ऐसा भी है जो हमें जिसके भी अभी हमारे पास वर्चुअल में KKTU की तरफ से नहीं मिले and suppose we got the virtual lab link somehow for any other experiment, so we will share it here. Otherwise, we will provide you the detailed experiment video. We will try to provide you the detailed experiment video, how you should perform that, and all other things will be there to
the lab instructor as well as security. So that will be more fruitful. Clear? So ये आपके experiment details हैं. The first one is related to the microprocessor 8085. That is for decimal and hexadecimal addition. Clear? As well as subtraction of two numbers. So these experiment that is belong to the decimal and hexadecimal numbers addition as well as subtraction is 8085 microprocessor. You can go for the programming from through the link available to you. देखिए आपको इसके सामने बोल्ड लेटर में लिखा होगा टू वर्चुअल लैब लिंक. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिख रहा होगा there is a point mentioned through virtual lab link. Is it clear to all of you? दिख रहा है सभी को? All of you सभी को दिख रहा है ये? Yes, sir. ठीक है. तो ये हमारे पास वर्चुअल लैब लिंक के थ्रू ये हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. We will do this and while the rest of the experiment I also show you. देखिए the second experiment है write a program using 8085 microprocessor for addition and subtraction of two binary coded decimal numbers. That is also known as here through virtual lab link. मतलब इसको virtual lab link के through ही करना है. And the third one is to perform multiplication and division of two 8-bit numbers using 8085 microprocessor. This is also through virtual lab. ठीक है. The fourth one is to find the largest and smallest number in an array of data using 8085 instruction set. So actually we have total 16 number of experiments which is provided by the AKPU, but out of 16 we will do only 10. Okay? So the above that is from 1 to 5 that is almost clear because we have got the link available here. So except experiment number 4, we are having 1, 2, 3, and 5. We are having the virtual lab link. So we can do it with the help of virtual lab link. And except that, those experiments which we will decide, where I will try to have the link. I will try to search the link and then I will which we can perform that. So some of the experiment that is belong to 8086 as well. I think you all are studied about the microprocessor in this particular Hello. I think you all are studied about the microprocessor. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो. Yes, sir. तो देखिए इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जैसे आपका राइट ए प्रोग्राम ऑफ क्लासिक एलईडी connected to port 1 of the 8051 microcontroller. This is based on the microcontroller that is hardware based. Exactly. ठीक है. The 12th one is write a program to generate 10 kilohertz square wave using 8051. This is another microcontroller based जो experiment है आपका. So write a program to show the use of INT0 and INT1 of 8051 microcontroller. Then the write a program for temperature and to display on intelligent LCD display. इस तरह से हमारे पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं to convert given hexadecimal number into its equivalent BCD number, vice versa using 8086. So we have both 8085, 8086 based experiments, and along with that we have 8051 microcontroller based experiments. So out of 16 given in the AKTU, we will decide only 10 experiments here.
तो अगर हम इसके देखिए वर्चुअल लैब लिंक आपको प्रोवाइडेड है, आप लोग नीचे देख रहे होंगे, वी हैव द वर्चुअल लैब अवेलेबल एज वेल एज। तो अगर मैं इस वर्चुअल लैब लिंक पे आपको क्लिक करता हूँ तो access this virtual lab link. So this is the virtual lab link. You all see, you all can see. ये वही लिंक है जो आपको सिलेबस में मेंशन है. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? यस सर। तो मान लीजिए मैं इसी लिंक को क्लिक करता हूँ and then we go on the browser and then we paste upon that. तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया and now if we suppose enter, so we will go to the interface of that virtual lab. You can see that if we, ये आपको पेज दिख रहा होगा. तो ये वही, इसमें से आपको सारे एक्सपेरिमेंट तो वो वाले नहीं मिलेंगे जो आपके उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन आउट ऑफ 60 we got the maximum 4 to 5 experiments which will be covered through the virtual lab. ठीक है ना? So इसमें अब आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट डिटेल दिखा रहा है. The first one is write the program using 8085 and verify for addition as well as subtraction. Clear? So Anushka Singh Solanki is there. Anushka Singh Solanki. Hello, Anushka Singh Solanki is there. I am taking the name of the students, those who are connected with me. But suppose they are not responding, so I will make absence. So, hello, Aisha Rahman is there. Yes, sir. So, whenever you are connected with someone regarding your theory, regarding your any type of lecture or anything related to lab, you need to focus upon at particular time. Sir, there is a lot of background voice coming in. Your voice is not clearly audible. Okay. Still there is some background noise. Still there is some background noise. Or is it clear now? Is it clear now? Yes, sir. Okay. So actually we have when we have access on the particular link, virtual lab link that is provided by the AKTU, then we got the interface like this, and we have access on the browser, web browser. Here. Again, I am showing the step. Okay, ये हमारा step है. ये हमारे पास link available था. This was the link available on AKTU syllabus of this particular microprocessor and microcontroller lab. And when we goes through the virtual lab link, yeah, and then what we got, and we access on the browser. इसको हमने ब्राउजर पे जब एक्सेस किया तो हमको ये जो हमको रिजल्ट मिला वो कुछ इस तरह से इंटरफेस मिला. अब इसमें देखिए जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमको दिखा रहा है, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग 8085 and verify for addition of 2 8-bit numbers and 2 16-bit number. Now suppose I am going to click on this. इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया. ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग, पहला पार्ट है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग 8085. अब इसमें एम आपको सामने दिख रहा होगा कि देयर इज एन एम लाइक राइट ए प्रोग्राम यूजिंग 8085 and verify for addition of 2 8-bit numbers, then addition of 2 16-bit numbers with carry. Clear? Aim is showing to all of you, na? Yes, sir. Aim is showing to all of you. हेलो, एम सभी को दिख रहा है ना? यस सर।
ओके, फिर अब इसके बाद जैसे हम इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो ये पूरा आपका से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, इसमें आपका देखिए ब्रीफ इंफॉर्मेशन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। देन वी हैव गॉट सम addresses related to 8085 microprocessor, something like address bus, data bus, control and status signal, power supply and frequency signal. These are the signals belonging to 8085 microprocessor. They are categorized into 6 groups exactly. Clear? Then various operations performed are store 8-bit data. आप सभी को पता है 8085 8-bit data store करता है। ठीक है, 8086 is the 16 बिट का डेटा एक्सेप्ट करता है, 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? नाउ इट परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, चेक्स फॉर कंडीशंस, सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टोर डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन द डिफाइंड रीड राइट मेमोरी लोकेशन कॉल्ड द स्टैक। ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है इसमें। इसके बाद कुछ इंटरप्ट सिग्नल भी होते हैं। इंटरप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, you all have studied this subject na, in this semester you all are studying this microprocessor subject। इस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं ना माइक्रो प्रोसेसर? यस सर। ओके, तो अभी आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, आई थिंक 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स तो आप लोगों को पता ही होगा। You all are aware with the architecture of 8085, then pin diagram of 8085, ये सारी चीजें तो बता दी गई होंगी। Yes, sir. यस। ओके गुड। तो ये जो भी बेसिक चीजें हैं ना, ये उसी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका पिन डायग्राम, आपको इंटरप्ट पता होंगे। इंटरप्ट क्या होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट सिग्नल, दैट इज हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक, हार्डवेयर में आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स कितने पड़े हैं आपने हार्डवेयर में? 5 और 6 और 7 कितने पड़े हैं हार्डवेयर इंटरप्ट? पढ़े हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में पता है नहीं पता है? तो 5 होते हैं ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.7, गुड RTR। गुड। एंड दिस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। So इसको हम trap, हाईएस्ट, वेरी गुड, ट्रैप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। Good। ऐसे ही हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी पढ़े हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी आप लोगों को पता होगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हैं टोटल? How many software interrupts are there in 8085 microprocessor? This is very important question regarding your GATE as well. GATE एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है इंटरप्ट वगैरह के बारे में, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, so it is very important। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हैं? RST 0, no, RST 0, RST 1, RST 2। Yes, sir. RST 0 to RST 7. Yeah, okay, RST 0 to RST 7, this is what? These are the software Software. interrupt। Yes, sir. ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब होता है ये जो किसी सिग्नल को अफेक्ट कर रहा हो। जैसे आप सपोज यू आर डूइंग सम वर्क एंड सम अनदर पर्सन कम एंड इंटरप्ट यू इन दैट पर्टिकुलर वर्क, आपको डिस्टर्ब कर दे उस काम को करने में, तो दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरप्ट। ऐसे ही हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया या कोई आपका सिग्नल है, ठीक है, जिसमें या आपकी बिट्स आपकी कोई ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, कोई सिग्नल ट्रेवल कर रहा है and somehow suppose there is a hindrance in the signal in between the part। yes, रास्ते में चलते चलते उसको कोई hindrance मिल गया तो that is the interrupt। interrupt मतलब जो उसने उसको अफेक्ट कर दिया। ठीक है, अब interrupt जो है सिग्नल में दो तरीके, मतलब सिस्टम में दो तरीके का आ सकता है। हार्डवेयर में भी इंटरप्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी। इसलिए दो तरह के इंटरप्ट हैं। हार्डवेयर का मतलब है जो आपके पास हार्डवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, मतलब उसमें कोई सिग्नल, कोई ऐसी चीज है जो आ रही है बीच में प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या है कि जैसे कोई प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में कोई आपको एक इंटरप्ट सिग्नल रिसीव हो रहा है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, अब इसीलिए प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे आपने
बताया ना, जो ट्रैप को हम प्रायोरिटी देते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट में। मतलब अगर ट्रैप सिग्नल आ गया तो आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। आपको अपना वो जो करंट टास्क है उसको स्टॉप करके उसको प्रायोरिटी देना, उसको पहले डील करना है। देन यू कैन कम टू योर करंट टास्क, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई पार्ट में अगर आप कोई चीज मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग ऑटो अभी करंट टाइम में चल रही है आपकी कोई प्रोसेसिंग, तो कोई आपका अनदर टास्क आ गया, तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इज इट क्लियर? तो ये इंटरप्ट सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर में, बेसिकली 8085 हो या 8086 हो। इसके बाद आप लोगों ने मशीन साइकिल पढ़ी होगी। टोटल 7 मशीन साइकिल्स हैं, ठीक है। ऑप कोड, फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इंटरप्ट एक्नॉलेज, बस आइडल। अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन साइकिल? ये मशीन साइकिल क्या होती है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज मशीन साइकिल? अभी आप लोग करंटली पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में तो चीजें होंगी आई थिंक। हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? All of you are getting my voice. Hello. Yes, sir. Can anyone say what is the role of machine cycle in microprocessor? कोई बताएगा आप में से कि मशीन साइकिल क्या होती है? नहीं पता है? मशीन साइकिल पढ़ाया गया आप लोग को? मशीन साइकिल आप लोग को पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया है? CPU का? CPU is a microprocessor ना? CPU is a microprocessor। लेकिन मशीन साइकिल एक तरह की मतलब पूरी तरह से उसके टास्क को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी भी मशीनरी सिस्टम में आप एक मान लीजिए कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे टास्क का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम CPU है, CPU इज ए माइक्रो प्रोसेसर। सपोज यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 नंबर, दो 8 बिट के नंबर है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द इन द एक्यूमुलेटर। जैसे एक नंबर हमारे पास A है, एक है B है, A और B को ऐड किया, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। तो ये जो पूरा टास्क है ना, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली वी हैव द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल्स क्या है? मतलब ये आपका पूरा एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है कि पहले आपने डेटा को उठाया, फिर डेटा को रीड किया, फिर डेटा को राइट किया, ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, देन इंटरप्ट एक्नॉलेज, बस आइडल कंडीशन। ये सारी चीजें क्या है? एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है साइकिल्स हैं। एक पर्टिकुलर टाइप के टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जैसे मान लीजिए इतने टाइम में हमारा डेटा रीड होना चाहिए, इतने टाइम के लिए डेटा राइट होना चाहिए। ये सारे एक परफॉर्म है, मतलब आप इतने के लिए आपने इतने टाइम स्लॉट में हमने डेटा को एक्सेस किया, ठीक है, इतने टाइम स्लॉट में हमने डेटा में कुछ मतलब एडिटिंग करी। ये सब क्या है? दीज आर द व्हाट, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द कंप्लीट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 में, जैसे डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरी: डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग, मशीन कंट्रोल। इसके बाद आप लोगों ने कुछ एड्रेसिंग फॉर्मेट पढ़ा होगा, एड्रेसिंग मोड्स के कुछ फॉर्मेट पढ़े होंगे। जैसे आपका हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, ये सब एड्रेसिंग स्कीम्स हो गए। देन वी हैव द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। पिन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 14 बिट का ये आर्किटेक्चर है, 14 बिट का पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम आपका एक तरह से हार्डवेयर है, दिस इज ए हार्डवेयर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आईसी हमारी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इज हैविंग दिस
पिन डायग्राम, मतलब है ना, इसमें आपका 18 पिन 14 पिन का ये आईसी बना हुआ है, ऐसे ही आपका 8 पिन का भी होता है, 4 पिन का भी होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये 14 बिट की आईसी है या 14 पिन की आईसी है, दैट इज 8085 आर्किटेक्चर पिन डायग्राम। वी आर हैविंग द सीक्वेंसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट की तरफ को चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं, नंबरिंग सीक्वेंस देख सकते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन और है, एक एड्रेस बस होती है और एक एड्रेस विद डेटा बस होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 8085 में टोटल नंबर ऑफ कितनी केवल एड्रेस बस है? So A18 to A15 only address bus है, और AD0 to AD7 address plus multiplex data bus है. तो ये जो A8 से A15 है, ये आपकी क्या है? ये Address हायर bus है एड्रेस, sir. नहीं Higher एड्रेस address, बस तो है, higher order. हायर ऑर्डर एड्रेस है। AD0 से AD7 तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, प्लस उसमें डेटा बस होती है लास्ट, नहीं सॉरी एड्रेस बस लास्ट होती है, लोअर एड्रेस बस. गुड। अच्छा, ये बताइए कि एडी पहले जब हमारा मान लीजिए कोई मैसेज है, तो पहले हम लोग का एड्रेस डेटा चलेगा, मतलब AD0 से AD7 वाला जो एड्रेस डेटा बस है वो एक्सेस होगा या A8 से A15 होगा? अरे भैया मेरी दुकान देख रहेंगे 2 मिनट हम आ रहे हैं तो The higher order, but I'm not sure. पहले हायर ऑर्डर होगी। कैन एनीवन एल्स, कोई और बताएगा? आप लोगों ने मशीन साइकिल पढ़ी होगी, मशीन साइकिल में देखा होगा पहले कौन सी बस, पहले कौन सा एड्रेस एक्सेस होता है? No sir, lower order होगा, lower order. ये मशीन साइकिल आप लोगों ने पढ़ी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। फिर आप लोगों ने कुछ फ्लैग्स पढ़े होंगे, कितने नंबर ऑफ फ्लैग पढ़े हैं 8085 में? हाउ मच फ्लैग्स आर देयर? नहीं याद है? 5 पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं, कितने फ्लैग पढ़े हैं? देखो मैं मतलब ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग 8085 माइक्रोप्रोसेसर, नॉट ओनली फॉर 8085, कोई भी आप 8086 भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी ये सारी चीजें इसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन आएगा वहाँ पे भी, दिस विल गो टू 8085 एज वेल, ठीक है ना, 8086 एज वेल। तो ये आपको अगर ये फंडामेंटल का पता चल जाएगा तो यू दैट विल बी वेरी मच इजी फॉर 8086। इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या हैं, ठीक है 8085 के, उसके बाद आपका एड्रेसिंग क्या क्या है, एक फ्लैग्स कौन कौन से यूज होते हैं, फ्लैग आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसमें साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, पढ़ा है सब? Yes sir. कैरी फ्लैग, सारी चीजें पढ़ी होंगी, सबके अपने अलग अलग रोल हैं, साइन फ्लैग का अलग है, जीरो फ्लैग का अलग है, ऑक्सिलरी कैरी का अलग है, सारे अपने स्पेसिफिक टास्क है सभी के, ठीक है। Now we come to what? This is the architecture of 8085 microprocessor. This is very, very much important. The architecture of 8085 microprocessor, you can see in this architecture basically. अच्छा, आप बताएंगे what is the role of architecture of 8085? क्या इसका क्या रोल है? Why we do architecture of anything? Architecture, what explain architecture? Architecture क्या बताता है किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर, क्या उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सप्लेन करता है? सर वो कैन एनीवन एक्सप्लेन? बताता है कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे कैसे मैप्ड है और कैसे मतलब अरेंज्ड है. What is the principle of what is the principle of any architecture of any particular system? किसी भी सिस्टम में मतलब हम उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, what is the principle behind that?
व्हाई वी मेड द आर्किटेक्चर, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्यों बनाते हैं आर्किटेक्चर, क्या नीड है आर्किटेक्चर। और कोई बताएगा आर्किटेक्चर का क्या काम होता है। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, वेरी फंडामेंटल, जिससे आपको पता तो आर्किटेक्चर क्या है, क्या मतलब है आर्किटेक्चर, व्हाई वी डू सो। कोई और बताएगा आप में से। You all are in third year student and suppose you are not doing about the architecture. आर्किटेक्चर जनरल वे में सोचिए ना कि आर्किटेक्चर, किसी भी चीज का आर्किटेक्चर का क्या मीनिंग है, क्यों बनाते हैं आर्किटेक्चर, किसी को नहीं पता, nobody knows। किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, नहीं पता। एक तरीके से वो एक उसका एग्जैक्ट मतलब उसकी कॉपी बन सकती है। लाइक हमारा जो अगर आर्किटेक्चर है ऑफ 8085 तो उसकी एग्जैक्टली वैसा ही एक हार्डवेयर में भी प्रेजेंट होगा। बेसिकली उसको कॉपी करता है। आप भी यू आर गोइंग, एक्चुअली मैं उसका प्रिंसिपल जानना चाह रहा हूँ, आर्किटेक्चर हम बनाते क्यों हैं। देखिए किसी भी सिस्टम का, जैसे आप जनरल वे में सोचिए, जैसे हम लोग घर में एक मैप बनाते हैं, घर बनाने से पहले उसका एक मैप बनाते हैं ना। कोई भी काम करने से पहले उसका एक रोड मैप बनाया जाता है कि हमको ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें करनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी आर हैविंग अ रोड मैप बिहाइंड एनी वर्क। जैसे घर बनाते हैं तो घर के लिए उसका एक मैप बनता है, ठीक है ना, नक्शा जिसको बोलते हैं, नक्शा पास होता है कि यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। ये सारे कमरे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ जो भी है वाट एवर क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दैट, उसी को आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, उस मैप के अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कोई, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो वी आर सपोज द आर्किटेक्चर ऑफ हैविंग द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसका क्या मतलब है कि कैसे वो प्रोसेसिंग, कैसे वो हर एक, जैसे मान लीजिए उसका एग्जैक्ट टास्क क्या है, सीपीयू का टास्क क्या है, प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग इज व्हाट, जैसे क्या मान लीजिए नंबर को ऐड ही करना है, एक सिंपल सी प्रोसेसिंग है, वी वांट टू ऐड 2 8-bit नंबर्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूजिंग द प्रोग्राम। तो इसका टास्क है दो नंबर्स को ऐड करना और हमको रिजल्ट दे देना। तो इस रिजल्ट को पाने के लिए और दो नंबर को ऐड कराने के लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे और कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे इन्वॉल्व होंगे, इसी को आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है ना। और कैसे कैसे उसकी इंटरफेसिंग करेंगे, कैसे कैसे हमारा डेटा कैसे प्रोसेस होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। एम आई राइट? बताइए, एम आई राइट? हेलो, यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, मेरी बात समझ में आ रही है? आर्किटेक्चर का मीनिंग समझ में आया? तो ये जो आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है 8085 माइक्रोप्रोसेसर, दिस इज अ जनरल आर्किटेक्चर which can perform any kind of operation, either arithmetic or logical। कोई भी ऑपरेशन चाहे अरिथमेटिक हो चाहे लॉजिकल हो, दोनों ही आप 8085 माइक्रोप्रोसेसर से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। अब आप इसको, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, इसकी वर्किंग आपने पढ़ी होगी, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर हमें मान लीजिए दो नंबर ऐड ही करना है तो हम उसको क्या करेंगे। हमारे पास देखिए एक जनरल पर्पस रजिस्टर दिख रहा होगा आपको, दैट इज इन द राइट साइड, जैसे BCDEHL, these are what जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद एक स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारा डिजाइन होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड
there is a general purpose register, that is B, C, D, E, L, E, H, L, ठीक है. Then there is the stack pointer, program counter, increment, decrement, address flag. इन सब का काम क्या है? जैसे हमारे पास कोई डेटा है, डेटा को हमने टेम्पोरली स्टोर किया, ठीक है. जैसे मान लीजिए a plus b is equal to, हमको एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर कराना है, तो हमने क्या किया? Start with the general purpose register. Here we have the काउंटर अपडेट, मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे ए और बी है, तो हमने ऐड किया. ऐड करने के बाद वी हैव द एड्रेस बफर फ्रॉम A15 to A8 एंड द लोअर एड्रेस दैट इज AD7 से AD0 एड्रेस एंड डेटा. क्लियर? ये क्या करेगा? इसमें एड्रेस इंफॉर्मेशन भी होगी. एड्रेस किसकी होगी? कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ डेटा जा रहा है. दिस इज हैविंग द एड्रेस इंफॉर्मेशन. ठीक है, इस तरह से हेडर होता है, हेडर में एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है. अनदर इज द एड्रेस एज वेल एज डेटा बस. तो लोअर एड्रेस और अपर एड्रेस दोनों आपको उसका पता होगा, जो भी आप कंटेंट ला रहे हो. ये है बी है, दोनों का लोअर और अपर एड्रेस. ठीक. देन वी हैव द डेटा. डेटा हमारे पास अवेलेबल ही है, उसको हमने ले गए कहाँ पे? एक्यूमुलेटर के पास. देखिए वी हैव द टेम्परेरी रजिस्टर. यहाँ से डेटा हमारे पास गया. वी हैव बाई डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल, बोथ टाइप ऑफ बस. आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 तरह की बस, कंट्रोल बस, डेटा बस एंड थर्ड वन इज व्हाट? एड्रेस बस. वी हैव 3 बस ना, कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस. क्लियर? इन तीनों का हमारा यहाँ पे यूटिलाइजेशन है. ठीक है. डेटा बस इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा, दैट इज अ टाइप ऑफ बाई डायरेक्शनल. क्लियर? इसके बाद कंट्रोल बस है. Control bus is using to control the whole architecture, whole processing of the system. The address bus is used to assign the address of source as well as destination. Here. So there is a serial data transmission through the data bus. You can see there is a 8-bit internal bus line, and there is an accumulator and temporary register. Temporary register is used to store the data temporarily. Suppose we have a data a plus b is equal to a. ए हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा हो गया, बी हमारा टेम्परेरी रजिस्टर का डेटा हो गया. दोनों आया ALU में गया. ALU में गया एंड देन ALU विल ऐड देम. ठीक है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ. आई जस्ट हाईलाइटेड दैट. वेट, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? हेलो. यस सर, क्लियर आ रही है. देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ. मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, बाकी तो आपको पढ़ाया ही गया होगा. देखिए यहाँ से सपोज एक डेटा हमारे पास आया और यहाँ से डेटा आया. ठीक है, दोनों डेटा हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया. जैसे मान ली A और B 2 नंबर है, इसको हम ALU में ले गए. ALU is the arithmetic logical unit which perform the arithmetic operation और logical operation. तो इसने क्या किया, सपोज दोनों नंबर को ऐड कर दिया, क्योंकि हमको ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो द एडिशन ऑफ दैट विल गो टू अगेन 8-bit internal bus. Now it is moving to the serial bus. Clear? Now this again when you apply, ALU is also connected with the flag register. फ्लैग अभी हमने आपको बताया ही था. देयर आर साइन फ्लैग वैलिड है ना, तो जितने भी फ्लैग हैं तो फ्लैग रजिस्टर विल अप्लाई. क्लियर? एंड